Okay, beta. So after group 7, sorry, periodicity, the next chapter we have is basically a very small topic, which is group 2 elements. Yes, we all know that group 2 elements belongs to basically are the metals. अच्छा, अब ये क्लियर होना चाहिए कि हमारा हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेक्शन किस तरह कंसिस्ट करता है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में periodicity पढ़ा ना। Periodicity is basically the physical and chemical properties across the period from left to right, in which we get the general introduction of metals, metalloid, non-metals and noble gases. सबके बारे में थोड़ा थोड़ा हमने वहां पर पढ़ा। And then we have a group 2 in our syllabus. Group 2 consists of typical metals. देखिए, left to right periodic table में metallic character decrease होता है, non-metallic character increase होता है, because we are moving from metals towards the non. So we have three groups that consist of metal. कौन कौन से हैं? Group 1, 2 and 3. इनमें से metal में कौन सा है? Group 2. तो group 2 is basically consist of typical. मिडिल में हमारे पास आता है कैल्शियम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि which element consists of the property or contains the properties of a typical metal, so the answer is calcium. एक तो group 2 का होना चाहिए because group 2 typical metals हैं, and the second thing is that within a group 2 it must be at the center, तो calcium हमारे पास center में आता है। Clear? तो हमने group 2 metals पढ़ेंगे, इसके बाद हम group 7 की तरफ जाएंगे। Group 7 are the typical non-metals and they have done some different properties, especially their reaction with sulfuric acid, the reaction with sodium hydroxide. These are called the disproportionation reaction or the redox reaction. इन reaction की importance ज्यादा है because इनके uses बहुत ज्यादा है। uses किस तरह ज्यादा है कि we normally use them as a bleaching agent. क्लोरीन को हम ऐड करते हैं पूल वाटर में to kill bacteria. ठीक है? तो ये दो ग्रुप हम पढ़ेंगे। इसके अलावा नाइट्रोजन एंड सल्फर हैव मोर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन in a way that we have sulfur, जिससे हमें सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। we have nitrogen, which जिससे हमें अमोनिया गैस मिलती है। अमोनिया एंड सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनिया चूंकि फर्टिलाइजर में यूज होता है, सल्फ्यूरिक एसिड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल। तो हम नाइट्रोजन एंड सल्फर वाला टॉपिक पढ़ेंगे। प्लस इन दो एलिमेंट की इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस भी बहुत है इन अ वे कि एसिड रेन में ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो एसिड रेन की वजह से हम इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो अगर हम ग्रुप 2 की बात करें, so yes, the metal group 2 metal, they consist of beryllium, magnesium, calcium, strontium and barium. ठीक है? These are the element of group 2. They all are typical metals. ठीक है ना? And they have all metallic properties. So they are basically, we have typical metals and they have all metallic properties, and we know about the metallic properties. Yes, क्या properties हैं? They have a metallic structure, ठीक है, which is a layer type structure. A positively charged metal ion is surrounded by a sea of delocalized electron, है ना? And these layer can slide over one another. That's why all metals are malleable and ductile. They have a high melting point and boiling point. Why they have a high melting point and boiling point? Because of the strong metallic bonding. ठीक है? Clear? And they are the good conductor of electricity because they have delocalized electron. The outermost electron of metals is delocalized. ठीक है? वो free electron होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह, मतलब from one atom to another atom मूव करता रहता है। ठीक है? तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम कहीं ना कहीं ओ लेवल्स में और एएस में पढ़कर आए। तो हम उन प्रॉपर्टीज को छोड़ते हैं और हम सबसे पहले इनका एक जगह दोबारा रिएक्शन देखते हैं, द रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, क्योंकि हमें थोड़ा सा ऑक्साइड्स के बारे में दोबारा से एक रिवीजन करते हैं। सो यस, एनी ग्रुप 2 मेटल, like if you have magnesium in a solid form or if you have calcium in a solid form, it react with oxygen and forming their respective oxide. ठीक है जनाब? Plus oxygen forming CaO, and all metal oxides are ionic. अच्छा, आयनिक स्ट्रक्चर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? If I ask you define an ionic structure, जैसे हम मेटल को कहते हैं मेटल्स हैव अ मेटालिक स्ट्रक्चर, कोवेलेंट कंपाउंड हैव अ सिंपल मॉलिक्यूल, जायंट आयनिक लैटिस स्ट्रक्चर। जायंट आयनिक लैटिस स्ट्रक्चर इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल आयनिक कंपाउंड। ठीक है जी? तो ये दो इक्वेशंस आपको बता रही हैं कि यस, मेटल कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्मिंग रिस्पेक्टिव ऑक्साइड। यहां पर हाफ लगा के वी आर गोइंग टू बैलेंस दिस इक्वेशन। ठीक है? उसके बाद हम आगे चलते हैं एंड वी कैन से दैट मेटल ऑक्साइड्स
दोबारा करवा रहा हूं ये, आर बेसिक इन नेचर, ऐसे ही ना, बेसिक इन nature. When they dissolve in water, they form an alkaline solution. So if you have magnesium oxide and you dissolve it into water, it will form MgOH twice. ठीक है, aqueous. So if you add solid, and depending on the solubility, it will form their respective hydroxide. ठीक है. So they are basic in nature. अच्छा, अब बात करते हैं reactivity of metals की. बताइए जनाब, reactivity of metals. एंड इट वैलिड फॉर ऑल मेटल्स. ठीक है, सारे मेटल्स पे वैलिड है बेटा ये, चाहे आप ग्रुप 1 मेटल की बात करें, ग्रुप 2 की बात करें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम. ठीक है. अच्छा मुझे बताएं, वेन एवर मेटल रिएक्ट, डू दे फॉर्म अ पॉजिटिव आयन और अ नेगेटिव आयन? मेटल, दे ऑलवेज फॉर्म अ पॉजिटिव आयन. ठीक है, तो अगर आपके पास मैग्नीशियम है बेटा, जब भी रिएक्ट करेगा, it always form Mg2 plus and it always release how many electron? In a similar way, अगर आपके पास कैल्शियम रिएक्ट करेगा तो there is an energy which is related to the removal of an electron. That energy is called ionization energy. Excellent. ठीक है. How many ionization energies are required for group 2 metals? 2 ionization energy value. So if I ask you, give me the value for this particular process in which magnesium from the gas form getting converted into Mg2 plus gas plus 2 electrons, तो आप बोलेंगे sir, the energy required is the first ionization plus second. दोनों I1 और I2 आप ऐड कर लेंगे. This is the energy required for this particular process. I hope this is clear. ठीक है. अब मुझे बताइए, from top to bottom आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इंक्रीज होगी और डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी. यस, गुड. व्हाई? Shielding effect increase because going down the group, as the electron is present in the new outermost shell, the shielding effect and the nuclear distance increases. ठीक है, which cancelled out the increase in nuclear charge. So the ionization energy value decreases. ठीक है, ये हम सिर्फ यही लिख रहे हैं कि it decreases. अच्छा जनाब, if the ionization energy value decreases, so the reactivity should increase or decrease? reactivity बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ जाएगी. ठीक है, लिख लीजिए reactivity के बारे में. The reactivity should increase. Okay. So as the ionization energy decreases, the reactivity increases. ठीक है. So the metal become more reactive going down the group. अगर आपको याद हो reactivity series O levels की ना भी याद हो, तो you remember that sodium is less reactive than potassium. Potassium ज्यादा reactive होता है reactivity series में potassium, and then you have sodium. So reactivity increases going down the group. And we know that the reaction with chlorine, oxygen के साथ हमने कर लिया, chlorine के साथ reaction हम periodicity में पढ़कर आए हुए हैं. Oxides की properties सारी periodicity में हमने पढ़ी हुई हैं. Let's talk about the metal carbonates. Metal carbonates. Okay. Metal carbonates somehow कहीं ना कहीं ये salt की property में आते हैं. So we have MgCO3, we could have calcium carbonate. ठीक है. And when we add any acid like H2SO4,
all these carbonate react forming salt MgSO4 प्लस क्या बनाएगा भाई, सोचें दोबारा, कैल्शियम सल्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O. So all metal carbonate react forming salt, carbon dioxide and water. ठीक है, salt, carbon dioxide and water. ठीक है, you remember the ionic equation for this? The ionic equation for the reaction between metal carbonate and acid is CO3 2 minus plus 2H positive aqueous, इसको भी आप aqueous ले सकते हैं, 2H positive aqueous forming carbon dioxide gas plus H2O liquid. ठीक है बेटा, this is the ionic equation and they normally ask about this ionic equation. Clear? Done? सही ना? So yes, metal carbonate, all metal carbonate react with acid forming carbon dioxide and salt and water. इनके साथ aqueous लिखिए, carbon dioxide is a gas, water is liquid. ठीक है, so this is solid आप ऐड करेंगे तो पहले ये solid structure break होगा और फिर उसके बाद ये इनमें convert हो जाएगा. सही बेटा, so this is the ionic equation. Yes, आगे चलते हैं and let's talk about the last टॉपिक. इसमें एक छोटा सा इनके कंपाउंड का फ्लेम कलर है, वो ऑब्वियसली हम एंड में करेंगे. ओके, let's talk about, डन बेटा, thermal stability of group 2 carbonates and nitrates. ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी में हमें किन चीजों के बारे में सोचना है. अच्छा, सबसे पहले मुझे बताइए कि लेट्स सपोज यू हैव मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, एंड कैल्शियम क्लोराइड. Magnesium chloride and calcium chloride, not carbonate, that all other compound rather than carbonate and nitrate. Calcium chloride or magnesium chloride यानी all compound rather than carbonate and nitrate going down the group. जब मैग्नीशियम से किसकी थर्मल सॉरी किसका आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? द आयनिक बॉन्ड ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड वुड बी स्ट्रॉन्गर और कैल्शियम क्लोराइड. कैसे सोचेंगे? देखें, ionic bond is the electrostatic force of attraction between a positive ion and a negative ion, and the ionic bond strong होगा अगर positive charge ज्यादा होगा और negative charge ज्यादा होगा. In other way, अगर मैं कहूं कि if you have higher charge density, positive charge density and negative charge density, तो ionic bond ज्यादा strong होगा. अब what is the difference between the term normal positive charge and the positive charge density? देखें, नॉर्मल डेंसिटी का मतलब क्या होता है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. नॉर्मल डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो चार्ज डेंसिटी का मतलब होगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी दोनों पे +2 का चार्ज है. मैग्नीशियम हैज अ चार्ज ऑफ +2. इन अ सिमिलर वे कैल्शियम पे कितना चार्ज है? 2+ का चार्ज है. लेकिन मैग्नीशियम में वो चार्ज एक बहुत छोटे एरिया में कॉन्फाइंड हुआ बिकॉज द रेडियस इज स्मॉल. इन अ केस ऑफ अ कैल्शियम इज स्प्रेड ओवर अ लार्जर एरिया बिकॉज द रेडियस इज लार्ज. तो किसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी? मैग्नीशियम. तो मैग्नीशियम का पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से इट्स गोइंग टू मेक अ मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड विद क्लोरीन एज कंपेयर टू कैल्शियम. सो कैन आई से दैट गोइंग डाउन द ग्रुप, as the radius of the metal ion increases, the charge density decrease and the strength of metallic bonding, ionic bonding decreases, and their thermal stability कम हो जाएगी. थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है?
थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है द टेम्परेचर एट विच इट रिमेन्स इन अ सॉलिड फॉर्म, और वो जिस टेम्परेचर को बेयर कर सके, ठीक है ना। थर्मली लेस स्टेबल का मतलब होता है डीकम्पोज एट लोअर टेम्परेचर। थर्मली मोर स्टेबल मीन इट कैन बेयर अ हाई टेम्परेचर, डीकम्पोज एट हायर टेम्परेचर। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखिए, ऑल आयनिक all group 2 compounds except carbonates and nitrates। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं ऑल अदर कंपाउंड एक्सेप्ट कार्बोनेट एंड नाइट्रेट की। ठीक है, ये बात इनके बारे में सर, नॉट फॉर वैलिड फॉर कार्बोनेट एंड नाइट्रेट। गोइंग डाउन group 2 as group 2 the charge density decreases due to increase in ठीक है, सो इसको मार्क कर लेते हैं, दिस इज गोइंग टू बी थर्मली लेस स्टेबल एंड दिस वन इज मोर स्टेबल। ठीक है, और रीजन आएगा, रीजन सिर्फ आप ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ आयनिक बॉन्डिंग एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, आई होप की बात समझ में आएगी। गोइंग डाउन द ग्रुप, एज द रेडियस इंक्रीजेस चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द चार्ज डेंसिटी आयनिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ वीकर हो जाती है ना, और उसके वीक होने की वजह से आपके पास थर्मल स्टेबिलिटी भी कम हो जाती है। तो जो डाउन द ग्रुप होंगे, यानी मैं आपसे पूछूंगा कैल्शियम और कैल्शियम और स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड में विच वन इज थर्मली मोर स्टेबल, तो आप बोलेंगे जनाब थर्मली मोर स्टेबल ऊपर वाला है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड का साइज बड़ा, आयनिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ कम। अब चूंकि हमने लिखा है एक्सेप्ट कार्बोनेट एंड नाइट्रेट, इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोनेट एंड नाइट्रेट में स्टोरी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो हम ये बात यहां लिखेंगे, इन कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स द थर्मल स्टेबिलिटी increases due to decrease in the charge density of metal ion and decrease in ion polarization effect। ठीक है, दिस इज आयन पोलराइजेशन इफेक्ट। क्लियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हमारे एएस लेवल पे आपको ये सिर्फ स्टेटमेंट याद हो तो काम चल जाएगा कि थर्मल स्टेबिलिटी increases down the group, they become thermally more stable going down the group। सारे कंपाउंड लेस स्टेबल होते हैं, बट कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट मोर स्टेबल होते हैं, याद रखिएगा, दिस इज ओनली फॉर कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स। ठीक है बेटा, ओनली फॉर कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स।
सही है। सो अब समझ लेते हैं इस बात को कि बाय व्हाट इज एन आयन पोलराइजेशन इफेक्ट। मैंने यहाँ पे जिक्र किया ना, एज आई सेड कि दिस आयन पोलराइजेशन इज टेक्निकली अ पार्ट ऑफ अ A2 सिलेबस, लेकिन हमारे लिए समझना जरूरी है। देखिए इधर, देखिए यू हैव अ पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन विच इज Mg2 प्लस, अ वेरी स्मॉलर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कैन आई से दैट Mg2 प्लस हैव हाई और लार्जर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। ठीक है, मैं सिर्फ समझा रहा हूं कि आयन पोलराइजेशन हो गया। नाउ इफ दिस इज अटैच्ड टू अ वेरी लार्जर कार्बोनेट आयन, ठीक है, carbonates and nitrates are larger ni, they have lots of electron, they have four nuclei in fact, three oxygen and one carbon, so they are the complex ni। होता क्या है कि जो स्मॉलर कैटाइन है ना, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है बिकॉज इसकी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, और न्यूक्लियाई को रिपेल करता है, जिसकी वजह से द शेप ऑफ दिस लार्जर एनाइन, इस शेप के अंदर एक डिस्टॉर्शन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इस डिस्टॉर्शन की वजह से ये जो इनका बॉन्ड है, दिस बॉन्ड बिकम वीक। ठीक है, दिस इफेक्ट इज बेसिकली कॉल्ड आयन पोलराइजेशन। कैन आई से दैट आयन पोलराइजेशन इज अ डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन का मतलब समझ रहे हैं, गड़बड़, द डिस्टॉर्शन इन द शेप ऑफ अ लार्जर एनाइन लाइक कार्बोनेट एंड नाइट्रेट due to a highly positive charge density of a smaller cation। अब जितनी ज्यादा आयन पोलराइजेशन उतनी ज्यादा डिस्टॉर्शन, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी उतनी ज्यादा डिस्टॉर्शन, जितनी ज्यादा डिस्टॉर्शन उतना बॉन्ड वीक होगा। क्वेश्चन ये है कि व्हाई द बॉन्ड्स गेटिंग वीकर ड्यू टू डिस्टॉर्शन, वीक क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द सिमेट्री। यानी देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जितनी सिमेट्रिकल शेप होती है विदाउट लोन पेयर, वो सारी स्टेबल होती है। लाइक इफ आई गिव एन एग्जांपल, CH4, इट्स अ वेरी अनरिएक्टिव मॉलिक्यूल। क्यों? बिकॉज अ टिपिकल नॉन पोलर मॉलिक्यूल, कोई पोलराइजेशन नहीं है, यहाँ पोलराइजेशन क्रिएट हो गई, आपने देखा। ठीक है, एंड द शेप इज सिमेट्रिकल, सो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है इफ द शेप इज सिमेट्रिकल। तो यहाँ क्या हो रहा है, सिमेट्री डिस्टर्ब हो रही है। जितनी ज्यादा सिमेट्री डिस्टर्ब होगी, जितना ज्यादा आयन पोलराइजेशन होगा, उतना ज्यादा ये बॉन्ड वीक होता जाएगा। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द डिस्टॉर्शन इन द शेप ऑफ अ एनाइन, लार्जर एनाइन। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या क्लोराइड ब्रोमाइड में ऐसा होता है? तो वहां ऐसा नहीं होगा। अब एक छोटी सी बात का जवाब दीजिए कि अगर मेरे पास इंस्टेड ऑफ मैग्नीशियम, इफ आई हैव कैल्शियम विद अ लार्जर साइज with the same carbonate, ठीक है, सो कैन आई से दैट इट क्रिएट लेस डिस्टॉर्शन, है ना, क्योंकि इसकी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम है, इसकी डिस्टॉर्शन कम होगी, और इसका बॉन्ड स्ट्रांग होगा वीक होगा? इसका बॉन्ड होगा स्ट्रांग। थर्मली विच वन इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल? So can I say that going down the group, the thermal stability of carbonate and nitrate increases, all other compound में decrease। फैक्टर क्या आ गया? The fact, only factor is the ion polarization। जितनी ज्यादा distortion, उतना ज्यादा weaker bond, thermal stability उतनी कम। That's the concept why carbonates and nitrate thermally become more stable going down the group, whereas all other compound thermally less stable हो जाते हैं। O level standard, sorry, AS में आपको सिर्फ दो बातें पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए इफ दे आस्क यू टू कंपेयर द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ एनी टू ग्रुप टू क्लोराइड्स, तो आप बोलेंगे भाई जो डाउन द ग्रुप है दैट्स थर्मली लेस स्टेबल, क्लोराइड की बात हो रही है। बट इफ दे आस्क यू अबाउट द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ एनी टू कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स, तो जो डाउन द ग्रुप है इट्स गोइंग टू बी थर्मली मोर स्टेबल। बस इतनी सी बात है। एंड द फैक्टर और इसका रीजन क्या है? द रीजन इज बेसिकली आयन पोलराइजेशन। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आयन पोलराइजेशन। आगे चलते हैं। यू नो द इक्वेशन फॉर द थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ, ये कॉपी कॉपी तो नहीं कर रहा? ओके, राइट डाउन द इक्वेशन बेटा। सो इफ आई गिव एन इक्वेशन ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट की थर्मल डीकम्पो, व्हाट शुड इट फॉर्म? क्या बनाएगा जनाब? दैट इज फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये इक्वेशन तो बहुत आसान सी है। देयर इज अनदर इक्वेशन फॉर द थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट। जैसे हमारे पास इफ वी हैव मैग्नीशियम नाइट्रेट, NO3 और 2 लगेगा, when they it decompose forming the same magnesium oxide solid plus nitrogen dioxide gas plus
oxygen gas. ठीक है? And this nitrogen dioxide gas is basically a brown gas. ठीक है? हो सकता है वो आपसे बोले कि there is a group 2 compound. On heating that group 2 compound, it evolve a gas or gas with a brown color evolve. ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि ब्राउन कलर सिर्फ नाइट्रेट्स में आपको मिलती है, which is nitrogen dioxide. This equation is not balanced. तो इसकी इक्वेशन को आप बैलेंस कर लीजिए. इट इज बैलेंस नाउ. देखिए, ठीक है ना? अगर मुश्किल हो रही है तो यू कैन मेमोराइज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ठीक है जनाब? तो अब सवाल दोबारा से सुनिए. दे आस्क यू कि विच ग्रुप 2 मतलब कार्बोनेट्स की और नाइट्रेट की बात होगी, थर्मली मोर स्टेबल, ऑल अदर कंपाउंड थर्मली लेस स्टेबल. इन सिमिलर वे, solubility of group 2 hydroxide is the next one. ओके, solubility of group 2 hydroxide. जनाब मुझे बताइए solubility का मतलब क्या होता है? How easily it get dissolved in water. कितनी आसानी से वाटर में डिसॉल्व हो जाता है. That's the solubility. You have a ionic compound solid form में, आपने उसे वाटर में डाला, होगा क्या? वाटर सबसे पहले क्या करेगा? उसके मेटालिक स्ट्रक्चर, सॉरी, उसके आयनिक स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा एंड देन उसे हाइड्रेट करेगा. ठीक है? सो द फिनोमेना इज व्हेन यू डिसॉल्व एनी आयनिक कंपाउंड इन वाटर. लेट्स सपोज आपने मैग्नीशियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व किया. इट इज इन अ सॉलिड फॉर्म. द फर्स्ट स्टेप, वाटर विल कन्वर्ट इट इनटू Mg2 प्लस गैस प्लस 2Cl नेगेटिव गैस में, एंड देन इसको हाइड्रेट कर देगा. हाइड्रेट कैसे करेगा? Mg2 प्लस एक्वस एंड 2Cl नेगेटिव एक्वस में. और Mg2 प्लस एक्वस का मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है Mg आयन सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है? Mg2 प्लस सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल, इसका मतलब होता है एक्वस आयन. ठीक है? क्लियर? और जो फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है, दैट्स बेसिकली कॉल्ड आयन डायपोल interaction. It is basically ion dipole interaction. ठीक है? आपके पास पॉजिटिवली चार्ज आयन है और वाटर्स में यू हैव अ डायपोल, सो दिस इज कॉल्ड आयन डायपोल इंटरेक्शन. ठीक है? यानी सबसे पहला काम क्या हो रहा है कि इसका आयनिक स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है. अब जरा मुझे सवाल का जवाब दीजिए. यू हैव मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, you have calcium hydroxide, you have strontium hydroxide. ठीक है? सो गोइंग डाउन द ग्रुप, स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्डिंग बढ़ेगी कम होगी? इंक्रीज और डिक्रीज? द बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्गर और वीकर? हाइड्रोक्साइड इज अ कॉमन आयन, इसमें तो कोई फर्क नहीं आ रहा है ना. द फर्क आ रहा है मेटल आयन में. एंड द साइज ऑफ द मेटल आयन इंक्रीजेस, चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेस, स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्डिंग डिक्रीजेस. वाटर किसके बॉन्ड को ज्यादा, किसके लेटेस्ट स्ट्रक्चर को ज्यादा आसानी से ब्रेक करेगा? मैग्नीशियम के या स्ट्रोंटियम के? स्ट्रोंटियम के. So that's why they become more soluble down the, going down the group as the size, as the ionic strength of the ionic bonding decreases, the solubility in water increases. Statement लिख लेते हैं. Going down the group as
the strength of ionic bonding decreases due to decrease in the charge density of metal ion, the solubility, हाँ भाई, बढ़ जाएगी, solubility increases. ठीक है, इसको मार्क कर लीजिएगा. दिस इज गोइंग टू बी मोर soluble in water. ठीक है, तो यस वी हैव स्ट्रोंटियम गोइंग डाउन द ग्रुप. सॉलिबिलिटी भी इंक्रीज होती है, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है. सिर्फ कार्बोनेट और नाइट्रेट की थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ जाती है. की पॉइंट ये है कि आपको थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट और नाइट्रेट की इक्वेशन याद होनी चाहिए, बैलेंस इनके ट्रेंड आपके ध्यान में होने चाहिए, रीजन पता होना चाहिए. जैसे मैंने तो आपको कार्बोनेट और नाइट्रेट का भी रीजन बताया है, जो कि नॉर्मली मुझे नहीं बताना चाहिए था, लेकिन अब आपको क्लियर हो गया कि यस पोलराइजेशन क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से बॉन्ड वीक हो जाता है. पोलराइजेशन बढ़ेगी, बॉन्ड वीकर होता जाएगा. डाउन द ग्रुप चार्ज डेंसिटी कम हो रही है, पोलराइजेशन कम हो रही है, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है. व्हेन यू रिवाइज इट, आई रिकमेंड कि आप कहीं अपने अपने तौर पे एक शॉर्टकट में इसको लिख लीजिएगा. डाउन द ग्रुप सॉलिबिलिटी एंड थर्मल स्टेबिलिटी सारे कंपाउंड की बिल्कुल सॉलिबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी कम होती है, सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है, ऐसे ही ना. अच्छा, जिस तरह से कार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी का ट्रेंड डिफरेंट है, उसी तरह सल्फेट की सॉलिबिलिटी इसके अपोजिट चलती है, लेकिन उसकी डिटेल हमारे पास कहां पर है, A2 के अंदर. ठीक है ना. तो सॉलिबिलिटी ऑफ ऑल अदर आयनिक कंपाउंड एक्सेप्ट, सॉरी, ऑल अदर ग्रुप 2 कंपाउंड एक्सेप्ट सल्फेट इंक्रीजेस डाउन. सल्फेट की क्या होती है, कम हो जाती है, और उसका फैक्टर हम A2 में जाके पढ़ेंगे. ठीक है, आगे चलते हैं. एक आखिरी बात, इनके फ्लेम कलर, फ्लेम कलर्स ऑफ ग्रुप 2 कंपाउंड्स. ठीक है, एलिमेंट नहीं, ग्रुप 2 कंपाउंड्स फ्लेम कलर. ओके, ये बात याद रखिएगा कि these are not the flame color of their element. कंपाउंड्स की बात हो रही है, सही है. जैसे हम इफ वी से मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड की बात हो रही है, ऑल दीज सॉल्ट, इस तरह के. ठीक है, एज एन एग्जांपल, दीज आर द फ्यू एग्जांपल. सो इफ वी हैव magnesium compound, it burn with the white flame. Calcium compound, brick red color. Calcium strontium compound, red color. And then barium compound, that's a green color, जिसको हम apple green color कहते हैं. ठीक है, सो ये थोड़े से कुछ कलर्स आपको याद रखने पड़ेंगे. दिस इज इट फ्रॉम द ग्रुप 2 कंपाउंड. देखें, आप वही सारी चीजें सारी पीरियोडिसिटी में पढ़ के आए. ओनली थिंग डिफरेंट इज बेसिकली द थर्मल स्टेबिलिटी एंड देयर सॉलिबिलिटी. ठीक है जी, तो ग्रुप 2 में इतना ही है, बस कुछ इक्वेशंस याद कर लीजिएगा, एंड देन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इन एग्जाम.